देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर शहर के पौर निगम के 23 नंबर वार्ड में जमे हुए पानी के चलते परेशानी झेल रहे हैं आवासीय क्षेत्र के लोग। जल्द से जल्द कदम उठाए जाने पर वोट बॉयकॉट किए जाने का दिया गया चेतावनी। लोंगाई चाय बागान क्षेत्र में 207 श्रमिकों के हाथों डिजिटल भूमि पट्टा का किया गया प्रदान। 4 श्रमिकों में देखी गई खुशी की लहर। सिलचर के असम सचिवालय का आनुষ্ঠাनिक तौर पर बराक उपत्यका शाखा का किया गया उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के प्रकल्प के तहत लाभान्वित होंगे बराक घाटी के लोग। बागाबाजार न्यू मार्केट क्षेत्र में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की निधन, घायल दूसरा व्यक्ति की भी हुई मौत। इलाके में छाई हुई है मातम की माहौल। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में आईसीयू के मरीजों के परिवार सदस्यों के रहने के लिए सांसद परिमल शुक्लबैद्य ने उठाया अहम कदम। निर्माण की जाएगी रेस्ट हाउस। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के पद्मनगर क्षेत्र में लगातार जमे हुए पानी के चलते लोग परेशानी झेल रहे हैं। लगातार नेता मंत्री विधायकों से अपील किए जाने के बाद भी कोई अहम कदम न उठाए जाने पर आखिरकार लोगों ने विधायक तथा जिला उपायुक्त से इस समस्या के समाधान का मांग रखा है। और तो और समस्या के समाधान न होने पर आने वाले मतदान से परे रहने का भी सिद्धांत दिया गया है। इस सिद्धांत के बारे में जानकारी देते हुए आबादी क्षेत्र के पीड़ित प्रभावित लोगों ने विस्तारित तथ्य उजागर किया। उनका कहना था कि हर साल बारिश के दौरान इलाके में पानी जम जाता है, जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कीचड़ व गंदगीपूर्ण माहौल में लोगों को जीना पड़ता है। कई और पहलुओं को लेकर लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। और तो जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान न होने पर आने वाले दिनों में वोट बॉयकॉट किए जाने का भी चेतावनी दिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए शीला पाल तथा आबादी क्षेत्र के दूसरे महिलाओं ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। रूमा पाल, चौधरी, सविता पाल व दूसरे हस्तियों ने भी अपने समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक किया और विधायक व प्रशासन से जल्द समस्या के समाधान किए जाने का भी मांग रखा। এইভাবে জল আজকে কোনো মানুষে অসুস্থ হইল কেমনে নিয়ে যাও? হ্যাঁ, এইভাবে এই বাচ্চা কাচ্চা অসুখ, তারপরে আমাদের পাও শেষ, তারপরে বয়স্ক মানুষ আছে, খাওয়ার জল গন্ধ। আজকেও তো খাওয়ার মধ্যে কি গন্ধ, জলের মধ্যে খাওয়া যায় না, নোংরা জল। হ্যাঁ, এরকম হইলে তো পানি ঢুকে খাওয়া যায় না, একদম খাওয়া যায় না, কিনে খাইতে লাগে। প্রত্যেক মানুষের বাচ্চারা বড়রা তো হইতেছে কিভাবে ঘরে জল ঢুকে জায়গা থাকা যায় না, খাওয়া দাওয়া কেমনে হইব, রান্না বাড়ি কেমনে হয়ে যাবে, উপাস থাকুম আমরা। আর এইভাবে মেলুক মানুষ হয়ে আমরা কাপড় উঠে উঠে, এটা কোনো কথা? এটা তো কোনো জায়গায় এরকম নাই, কাপড় উঠে উঠে, লজ্জার কথা। আমরা তো ছেলে না, ছেলে মানুষের ইয়ে করলে একটা কথা, এটা মেলুক মানুষ হয়ে আমরা কাপড় উঠে উঠে এইভাবে তো সবসময় বাইরেতে লাগে, বাইরেতে লাগে। এই জলের জন্য বাচ্চারা লইয়া যাইতেও লাগে। কেমনি যাইতাম আমরা বাচ্চারা লইয়া স্কুলে আদালতে? প্রথম তলে একটু জল নাই, তারপরে যে জলটা হইব কন্টিনিউ বৃষ্টির পরে যেটা জল হয় আমরা, এটা অলমোস্ট কমরও থাকে রাস্তা। আমরা কেউ মহিলা মানুষ বেরিতে পারে না ঘর থেকে, বাচ্চারা স্কুলে যাওয়া প্রবলেম। ডেইলি সকালে বাড়িতে লাগে, ঘুম থেকে উঠেও জল বেজান থাকে। সারাদিনের জলটা তো বাইরেতো, ঠিক আছে, নিচু এলাকা জল জমে সব জায়গাতেই হয় একটু একটু জল, কিন্তু জলটা বাইরেতে লাগে। তাড়াতাড়ি নিষ্কাশনের রাস্তাটা করিয়া দেওয়াটাই এদিকে মেইন কাজ। আর জাহাঙ্গীর কাল বান দিয়ে রাখি দিই, সিঙ্গির কাল বান দিয়ে রাখি দিই। পাঁচটা নির্বাচন গেছে, 5টা নির্বাচনের সমাধান হয়েছে না। 5টা নির্বাচন মানে 25 বছর, 2022-এ গেছে। এরপরে কোনো ডেডলাইন নাই। 5টা নির্বাচন গেছে, এটা সমাধান খাত হয়েছে নাকি তাই নালার মধ্যে? নালার মধ্যে খাত করে গিয়া ওইদিকে খালের দিকে খাত চলে।
রাঙ্গির কালে কাজ করে সিঙ্গির কালে কাজ বন্ধ সমস্ত মাটি রাঙ্গির কালে মাঝখানে আনিয়ে রাখি দিই পরিষ্কার করার কোনো কতটুক না এটা তো ঠিক আছে, আমরা তো জানি না, কিন্তু তারা যে কুদ্দা কুদ্দা মেন নালার মধ্যে হানো মাটিগুলো আইনা রাখা দেয়, ওই জলটা যেতে পারে না এই লেগে। আর তারপরে নালাটাও গর্ত করে না, মাটি তুলে না, তার লেগে আমরা আরো বেশি মাটি দিয়ে বন্ধ করে রেখে বড় নালাটা ডিপ করতো, বড় নালা, ছোট নালা না। খুদাই করে না মাটিগুলা ডিপ না, এটা তো রাস্তাটা সুন্দর করে নিচে তারা নালার মাটিটা মিউনিসিপালিটি থেকে যে লোক পাঠানো হয় ড্রেন পরিষ্কার লাগে, তারা উপরে থেকে আবার শুধু জাবরা তুলে, তারা রিকোয়েস্ট করার পরও বলে মাটি তুলো, হয় আমরা কোনো মাটি তোলার কোনো অধিকার নাই, আমরা জাবরা পরিষ্কার হব। তো এইভাবে চললে দ্বীপ তো বহুত আছে, কিন্তু তারা জাবরা ওই তুলে যায়, যে কোনো সমাধান হয়। ঠিক আছে। আচ্ছা কেউ দেখা যায় এখন আপনার খিদা করতাম তাহলে তো আমরা দেখা যায় সামনে মিউনিসিপালিটি বুট আইতেছে, আমরা বুট বয়কট করতে বাধ্য হয়েছি নাকি তা এটাই এখন আমরা এখন সম্পূর্ণভাবে আমরা একটা সবের লগে কথা হইয়া রাখছি, যাতে আমরা নির্বাচনে আমরা অংশীদারি করতাম না। যদি আমরা রাস্তা আমরা নিজেরাই দেখতে লাগে তাহলে তো আর আমরা ইয়ে না করাটাই বেটার। বিদায় টাকা অবস্থায় আমরা বুঝিয়ে দেবো না, ভোট দেওয়াটাই টোটালি স্টপ করবো আমরা। আমরা এন্টায়ার বেকার এরিয়া ভোট এবার বয়কট করার চেষ্টা করবো যদি আমরা তাড়াতাড়ি সমাধান না হয়। আপনার নামটা কই না? নমস্কার, আমি সায়ন রয় চৌধুরী, বিলপার 3 নম্বর গল্লির বাসিন্দা, একজন বলতে পারেন কমন মানুষ, কিন্তু আজকে যাবতীয় 2-3 বছর থেকে খুবই বাজেভাবেই জীবনযাপন করতে হচ্ছে। যদিও সমস্যাটা দেখতে গেলে অনেক আগেরই, তথাপি এখন নতুন করে দেখা যাচ্ছে নতুন ধরনের সমস্যা, যেখানে 4টি জায়গায় নালার নর্দমার কাজ বলে নালাটিকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে, যার কারণে এখানে অকল্পনীয়ভাবে জল জমা হচ্ছে, যেটা আপনি দেখতে পারেন। আর এরকম না যে খুব ভালো বৃষ্টির জল, একদম কালো নোংরা নর্দমার জল, যেগুলো বাজার থেকে শুরু করে আস্থা বরাগ যে আমাদের এই বিলপার এরিয়ার যে 3টা গল্লি আশ্রম অবধি, মানে জলগুলো সব এসে এখানে জমা হয়। জমা হওয়ার পর প্রতিটা বাড়ির মানুষ এতে, ঘরের ভিতরে কিছু মানুষের ঘরে তো ঢুকছেই, প্রায় আরও বলতে গেলে লোকেদের যে ঘরের থেকে বেরোনোটা খুবই অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন আগেরই একটা ঘটনা তুলে ধরছি, যেখানে আমরা শীতের মরশুমে কোনো সময়ই আমরা দেখিনি, ছোটোর থেকেই বড় হয়েছে, এখানে নালার জল জমা হয়ে রাস্তার উপরে উঠে এসছে, এবং কিছু মানুষের ঘরও যাদের একটু নিচু, তাদের ঘরও পর্যন্ত ঢুকলো। সে জায়গায় প্রশাসনের কাছে একটাই প্রশ্ন, এরকম কতদিন যাবৎ যন্ত্রণা সহ্য করা যাবে? এখানে লোকেদের আর সহ্যের সীমা বাঁধ হারিয়ে ফেলেছে। আমার প্রশ্ন, আগামী নির্বাচনে যদি আমাদের ভোটের প্রয়োজন হয়, তাহলে অতি সত্বর এদিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য প্রশাসন এবং মাননীয় বিধায়ক এবং এমএলএ যারাই আছেন, আমাদের এলাকার বলতে পারেন গার্জিয়ান, জনপ্রতিনিধি আছেন, তাদেরকে আমি একটু অনেকভাবেই রিকোয়েস্ট করা হয়। এটা না যে কোনো সময় বলা হয়নি, এটা প্রথমবার বলা হচ্ছে, বারবার বলা হয়, কেউ না কেউ গিয়ে তো বলছেই। আমি এখন অবধি কাউকে বলিনি, বাট আমার একটাই প্রশ্ন, যদি আমি হাত জোড় করে বলি এই সমস্যার থেকে সমাধান করাটা কি আপনাদের দায়িত্ব বলে মনে হয়, তাহলে আমাদেরকে অতি সত্বর এখান থেকে মুক্তি দিন। আমাদের নির্বাচন, এখানকার জনসাধারণ থেকে যেটা আমি পেলাম, জনসাধারণ বলছে এইবারের যে নির্বাচনী ভোট হবে সেটাকে সম্পূর্ণভাবে বয়কট করার জন্য আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
এবং এটাতে আমরা কিন্তু পুরো এন্টায়ার বিল পার ভোট দেবে না, এন্টায়ার পুরো সমগ্র বিলপার এলাকাবাসী এই ভোট বয়কট করবে। ভোটটা বয়কট করার চেষ্টায় আছি। যদি এটা তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান না হয় এবং যারাই এই কাজের নর্দমার কাজের নিয়েছে তাদেরকে আমি বলবো যে তাড়াতাড়ি এটাকে শেষ করুন, যাতে জল তাড়াতাড়ি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়। এবং আমরা এইসব আর ভাল লাগছে না, এগুলো কাউরই ভাল লাগে না, কারণ সবাই জলের মধ্যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন সবারই একদম হাঁটুর মাপে জল, সবাই ভুক্তভোগী। এই জলের মধ্যে থাকার একদম মানে বলতে গেলে কি বলবো, এটাকে আমি আমার শব্দে বলতে পারছি না। বাট এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন জলের এই সমস্যায় স্কুলের বাচ্চারা স্কুলে যাবে কিভাবে সেটা নিয়ে প্রশ্ন, পরীক্ষা চলছে বাচ্চাদের, যেখানে সবার মা বাবারা স্কুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য মানে অনেক কষ্ট পোহাতে হচ্ছে। অনেক লোকরা বাজার আনতে হবে, বাজারে বেরোতে হবে, কাজে বেরোতে হবে, কিভাবে কি করছে সেটা আপনারা আর বললাম না, সেটাকে আপনারা বুঝে নিন এবং তাড়াতাড়ি এটাকে সমস্যার সমাধান করুন। এখানে আমার আরও গুরুজন ব্যক্তিরা আছে, কিছু বলতে চাইলে ওদেরকেও জিজ্ঞেস করতে। लंबे अरसे के इंतजार के बाद सिलचर में असम सचिवालय के बराक घाटी के शाखा उद्घाटन किया गया। वर्चुअली 19 प्रकल्प की सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने सिलचर के सिगुना क्षेत्र में स्थित सिलचर असम सचिवालय का आनुষ্ঠাनिक उद्घाटन किया। कार्यक्रम में नेता, मंत्री, विधायक तथा दूसरे प्रमुख हस्तीगण भी मौजूद थे। निर्मल পিছনে আছে। না ঠিক আছে। একটি প্রকল্পের আমরা আরও 19টি প্রকল্পের যা আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাতে রিমোট তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। এবং Modern Command College, Shunai, 26.34 crores. Security School in Hailakandi, Foundation Stone laying question. 1 unit, 11.32. Target was 12.64 crores. Fish market হচ্ছে 25 crores. হচ্ছে পাতালকান্দিতে 30.40 crores. Auditorium Patalganga 6.67 crores. $8.10 crores. 19টি এই প্রকল্পের আমরা বরাদ্দ করতে পারছি নাগরিকের পক্ষ থেকে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙৰীয়াই এটা বহুত তাৰিখে নতুন মুখটো থাকিব, চবতে নতুন মুখ থাকিব, চিট বাঢ়িলেতো নতুন মুখ থাকিব।
ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছৰ মুক্ততা ভংগ হৈছে খবৰ ৰখা নাই ইলেকশ্যন কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ হ'ব? তো ইলেকশ্যন কমিশ্যনে জানিব মই কেনেকৈ ক'ম আমি ৰেডি হৈ আছোঁ বৰুৱানৰ বাবে জুবিন ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে। হা এইটো ভাল হ'ব আকৌ ঠিক কৰি দিব নিৰ্মাণ কেতিয়া যেতিয়া প্লেন এষ্টিমেট আহিব কমিটিয়ে যেতিয়া দিব বৰাকত কেইটা চিট ইমান মই এটা চিটৰ গন্তি কৰি থকা নাই ৰাইজে যিমান দিব সিমান চিট পাম বৰাকত কিমান চিট আশা কৰে বৰাকত যিমান চিট পাব পাৰোঁ সিমান চিট পাম সনাতনী মানুহে যিমান জিকাব পাৰে সিমান জিকিম Prior to the PM visit, Congressers are commenting that whenever PM Secretariat, they should see the convention center. চিট শ্বেয়াৰিঙত এজিপি কিমান পাব বৰাকত AGPয়ে বৰাকত পাব 3-4টা পাব কি কি হ'ব সোনাই পাব সাউথ কৰিমগঞ্জ পাব আলগাপুৰ পাব 3টাটো পাব 3টা চিট শ্বেয়াৰিং আজি অমিত শ্বাহজি আহিছে কালি ৰাতিপুৱা আমি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিম বাকি সব বিজেপি বাকি ইয়াতে বিজেপি 10টা চিট বিজেপি 10টা চিট বিজেপি 3টা চিট AGP बराक वैली 13 is covered बरकोला और उधारबन में किसको टिकट मिलेगा? आप लोग से बात कर लूंगा আজি আমাৰ বৰাক ভেলীৰ কাৰণে এটা অতি আনন্দৰ দিন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ এক্সপ্ৰেছ কৰিডৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে 2 এদিনতে কন্ট্ৰাক্টৰ সকলে আহি কামো আৰম্ভ কৰিব ইতিমধ্যে টেন্ডাৰ আদি কাম কমপ্লিট হৈছে আমাৰ শিলচৰ ফ্লাইঅভাৰৰ ফাউণ্ডেশ্যন কৰিলে তাতো কন্ট্ৰাক্টৰ ৰেডি আছে ইমিডিয়েটলি কাম কৰিব আমাৰ পাথাৰকান্দিত এগ্ৰিকালচাৰ কলেজৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে তাকো টেন্ডাৰ কমপ্লিট হৈছে তাৰো কন্ট্ৰাক্টৰে কাম লগে লগে হাতত ল'ব আমাৰ বৰাক উপত্যকাত আমি অসম সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ এটা এক্সটেনশন কৰাৰ আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো বৰাক উপত্যকাৰ ৰাইজক আজি আমাৰ আসাম সেক্ৰেটাৰিয়েট বৰাক উপত্যকাত স্থাপন হল ইয়াত মন্ত্ৰী প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী চিফ সেক্ৰেটাৰী সকলোৱে বহি কাম কৰিব পাৰিব আৰু বৰাকৰ ৰাইজে দিছপুৰত নোযোৱাকৈ ইয়াতে গোটেইবিলাক সুবিধা পাব পাৰিব কনভেনশন সেন্টাৰ এটা শিলচৰত শিলকুৰিত বনোৱা হৈছিল তাকো আজি উদ্বোধন হল হাইলাকান্দিত খুব সুন্দৰ এটা আমি সাৰ্কিট হাউস বনাইছো তাৰ আজি উদ্বোধন হল পাথাৰকান্দিত 800 মানুহ বহিব পৰা এটা অডিটৰিয়ামৰ কাম আমি আজি শিলান্যাস কৰিলো শিলচৰত এটা ফিশ মাৰ্কেট হ'ব তাৰ কাম আৰম্ভ হল শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ সন্মুখৰ ৰাস্তা বহলোৱাৰ কাৰণে যেটো আমাৰ প্ৰগ্ৰাম আছিল তাৰো আজি ফাউণ্ডেশ্যন হল আৰু শিলচৰ মেডিকেল কলেজত বাৰ্ণ ইউনিট এটাৰো আজি আমি মুকলি কৰিলো অলমোষ্ট 318 crores টকা মূল্যৰ প্ৰজেক্ট শিলান্যাস বা উদ্বোধন হল মই ভাবো বৰাক উপত্যকাৰ কাৰণে আজি দিনটো অত্যন্ত আনন্দৰ দিন ৰাতিপুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 24,000 কোটি টকা আৰু এতিয়া মই প্ৰায় 350 কোটি টকা খুব ভাল दिन आनंदर दिन मैं बराक उपत्यका राइजक अभिनंदन जनाइछुं सिवभूमि जिले के लौंगाई चाय बागान क्षेत्र में 207 श्रमिकों के हाथों डिजिटल भूमि पट्टा प्रदान किया अनिल कुमार त्रिपाठी ने लंबे अरसे के इंतजार के बाद चाय बागान के श्रमिकों को भूमि की पट्टा मिलने पर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिल रही है पतारकंदी समष्टि के लौंगाई चाय बागान में आनुष्ठानिक तौर पर यह पट्टा प्रदान किया गया इस कार्यक्रम में अनिल कुमार त्रिपाठी जो कि जिला परिषद सभापति हैं मौजूद थे चाय बागान के श्रमिकों की भूमि की पट्टा मिलने पर श्रमिकों में खुशी की माहौल देखने को मिली और राज्य व केंद्र सरकार की इस गतिविधि को लेकर आमंत्रित अतिथि तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए गीतारी
बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जिंदाबाद, कृष्णन दुपाल जिंदाबाद, कृष्णन दुपाल जिंदाबाद, कृष्णन दुपाल जिंदाबाद, कृष्णन दुपाल जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। बगान के श्रमिक भाइयों के लिए श्रद्धेय डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी द्वारा एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है, जिसको कि हमारे बगान वासी जो है कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे। बगान के लिए वह एक भगवान के रूप में आए हुए हैं, क्योंकि 200 साल से लगभग 6-7 पीढ़ियां बगान के लोगों का गल गया, लेकिन आज तक इन लोगों का कोई किसी प्रकार का जो है बगान में इनके घर का मालिकाना हक नहीं था। आज हमारे असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी के माध्यम से बगान के टोटल असम जितने बगान है असम में, सभी बगान के श्रमिक भाइयों को पट्टा प्रदान किया जा रहा है, भूमि पट्टा प्रदान किया जा रहा है, जिससे कि लोग बहुत ही खुश हैं। और बगानवासी जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा जी स्वस्थ और दीर्घायु रहे और ऐसे ही समाज के गरीब कुचले दबे हुए व्यक्तियों का सहयोग करते रहें। साथ में हमारे माननीय श्री कृष्णन दुपाल जो वर्तमान में असम सरकार के मंत्री हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, जिन्होंने अति परिश्रम के द्वारा बगान के हर श्रमिक के घर में जो है पट्टे का कागज पहुंचाने का एक सराहनीय कदम उठाया है, जिसके वजह से हम सभी बगानवासी हमारे श्री कृष्णन दुपाल महाशय के भी अत्यंत आभारी हैं। और भगवान से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि वह हमेशा ऐसे ही काम करते रहें और भगवान उनको लंबी आयु। आज जो है ये शुरुआत है, 207 लोगों को आज जो है पट्टा प्रदान किया गया है, अनलाइक जो हुआ है। इसके बाद जो है टोटल जो है धुबरी घाट से लेकर के इचाबिल मेदिनीपुर अपनी जितने पाथरकांदी समष्टि के अंतर्गत बगान है, सभी बगान के वासियों को पट्टा दिया जाएगा। हमारे श्रमिक भाई में जो है पट्टे का जो है डॉक्यूमेंट दे दिया गया है, कागज दे दिया गया है, फॉर्म फिलअप हो गया है, लेकिन अभी कुछ जो है सरकार के तरफ से जो कार्य हो रहा है जिसमें अविलंब चल रहा है, सारे कार्य पूरा होने के बाद जो है सभी हमारे बगान के भाइयों को पट्टा दिया जाएगा। दौरा विधानसभा केंद्र के भागा बाजार न्यू मार्केट क्षेत्र में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत पिछले दिनों हुई थी, लेकिन दूसरे दिन यानी 15 मार्च को दूसरे घायल व्यक्ति का भी मौत हो गया। एक ही हादसे में 2 युवक की मौत होने पर इलाके में दुखद माहौल छाई हुई है। सूत्रों के अनुसार सड़क पर खड़े ट्रक के साथ अपनी बहन की शादी से घर आ रहे 2 भाई दुर्घटना का शिकार हुए। घटनास्थल पर एक की मौत हो गई और दूसरे की मौत 15 मार्च को सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय में हो गया। राजमार्ग में गैर जिम्मेदाराना तरीके से लोरी खड़ा कर यातायात परिसेवा पर परेशानी खड़ा किए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल बनी हुई है। एक ही परिवार के 2 सदस्य एक ही हादसे में मारे जाने पर परिवार सदस्यों में मातम का माहौल बना हुआ है। गाड़ी अथा करते हवा थी नहीं
আচ্ছা স্যার এখন পানি মারতে পারিনি ওই যে ব্লাড আগের হেলমেট আসলো হেলমেটও আমি খুলিছি তাহলে হেলমেটও মানে অসুবিধা করে बारह चक्का गाड़ी भारत बेंज गाड़ी লাগাই আবার চালানি वाला ক্লিয়ার হনো লাগাই তো যে কোনো মানুষ দেখতো নম্বরটা এরপরে মানুষের বাড়ির রাস্তাঘাট এটা তারা চিনে না গাড়ি চালায় আবার চিনে না মাতিলে কইব রোড ট্যাক্স দিয়া হ্যাঁ রাস্তাঘাটে পার্কিং এর কোনো ওই যে এখন হ্যাঁ পার্কিং করছে আমার গড়ের রাস্তা ওনু আখটা একজন বাড়ি যদি ওদিক থেকে গাড়ি নিয়ে মারবো হ্যাঁ আমি বলা ভাই একটা লেগে যদি বারো মিনিট লাগে বুঝ করে বাতেন গাড়ি একটা মারি দিই আচ্ছা এটা জিনিস পুলিশের ওইটা সব অ্যাম্বুলেন্স আর এটা সব পুলিশ আর না তো আইবো পুলিশ আইতো না আলে একটা কথা समाचार में लेते एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক नाम। समाचारों के अगले चरण में भाजपा सरकार के उन्नयन की दिशा को नए रूप दिए जाने के उद्देश्य से बराक घाटी के साथ साथ उत्तर पूर्वांचल में 24,000 करोड़ रुपए की कई प्रकल्प का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रपुर क्षेत्र में आयोजित नागरिक सभा में करीब 3 लाख से भी ज्यादा लोग प्रतिकूल वातावरण के बावजूद जमा हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सम्मान व्यक्त किया। सूत्र के साथ ये भी जानकारी मिली है कि जिस तरीके से लोगों की जमावड़ा देखने को मिला, प्रकृति की वातावरण को पीछे छोड़ लोग अपने जान जोखिम में डालकर इस कार्यक्रम में योगदान दिए। गौरतलब है कि पंचग्राम से बारापानी तक निर्माण किए जाने वाले हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, एक्सप्रेस हाईवे व दूसरे कई परियोजनाओं को लेकर यह सभा आयोजित किया गया। अनानुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन भी किया गया था। कैपिटल पॉइंट से रांगीखाड़ी तक 3.5 किलोमीटर उड़ाल पुल निर्माण तथा शिवभूमि जिले के पथारखंडी में 122 करोड़ रुपए की लागत से बराक घाटी के पहला कृषि महाविद्यालय स्थापन का शिलान्यास भी किया गया। प्रतिकूल वातावरण के चलते भी असम के लोग जिस तरीके से कार्यक्रम में योगदान दिए, इस कार्यक्रम के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके प्रति आभार व्यक्त किया। ভূমি পূজন হবে এবং সড়কের সাথে সাথে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো আধুনিক রূপ দেওয়ার জন্য
कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को अपने हाल पर छोड़ दिया था, ठीक वैसे ही बराक वैली को भी बेहाल करने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने ऐसी बाउंड्री खींचने दी जिसे बराक घाटी का समंदर से संपर्क ही कट गया। जो बराक वैली कभी ट्रेड रूट के रूप में, एक औद्योगिक केंद्र के रूप में जानी जाती थी, उस बराक वैली से उसकी ताकत ही छीन ली गई। आजादी के बाद भी दशकों तक कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन बराक घाटी के विकास के लिए कुछ खास नहीं हुआ। साथियों, बीजेपी की डबल इंजन सरकार इस स्थिति को बदल रही है। हम बराक घाटी को फिर से व्यापार कारोबार का बड़ा हब बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। इस दिशा में एक बहुत बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। आज करीब 24,000 करोड़ रुपए के शिलांग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर का भूमि पूजन हुआ है। 24,000 करोड़ रुपए कितने 24,000 करोड़ रुपए कितने ये जरा कांग्रेस वालों को पूछना, जरा कागज पेन देना और उनको कहना कि जरा कागज पर 24,000 करोड़ लिखो तो कितने जीरो लगते हैं, आएगा नहीं उसको। हिंदी भाषी महिला मंच सिलचर के उद्योग से वर्णनाट्य भव्य कार्यक्रम के जरिए होली मिलन उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। संगीत, नृत्य तथा दूसरे और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर हिंदी भाषी महिला मंच के कार्यकर्ताओं ने रविवार को महिला महाविद्यालय के सभागृह में एक वर्णनाट्य व भव्य कार्यक्रम के जरिए होली मिलन उत्सव पालन किया। इस अवसर पर बड़े पैमाने पर समाजकर्मी, साहित्यिक तथा दूसरे कई हस्तीगण मौजूद थे। इस कार्यक्रम में संगीत, नृत्य व होली के गीत परिवेशन किया गया। कार्यक्रम का सूचना प्रदीप प्रज्वलन के माध्यम से किया गया। गौरतलब है कि मंच के महामंत्री श्रीमती सीमा कुमार तथा हिंदी भाषी महिला मंच के दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। होली मिलन कार्यक्रम को लेकर कवि सम्मेलन, हिंदी दिवस उद्यापन तथा दूसरे और कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने के बारे में भी संगठन कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में जानकारी दिया। इस कार्यक्रम को लेकर आयोजक कार्यकर्ताओं में खुशी की माहौल देखने को मिली। कार्यक्रम को लेकर युवा वर्ग तथा बच्चों ने जमकर संगीत नृत्य के जरिए होली मिलन उत्सव को पालन किया। आज के होली मिलन समारोह का शुभारंभ हमारे मध्य उपस्थित हैं एक बहुत ही अच्छी कवयित्री हैं और बहुत ही कवियों के राष्ट्रीय संगठन से भी जुड़ी हुई हैं, श्रीमती सीमा सिंह राय। मैं उन्हें अनुरोध करूंगी कि वो अपने द्वारा रचित गजल सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगी।
हूँ होली मिलन समारोह आयोजन करने के लिए। आज का दिन बारिश की वजह से थोड़ा और खुशनुमा हो गया है। मैं कहूँगी कि बहुत दिनों से सूखा पड़ा था, तो अच्छा लग रहा है। शुरू में मुझे बुलाया गया, मैंने सोची कि बच्चे पहले डांस वांस कर लेते, फिर हम कविता करते। खैर चलिए शुरुआत करते हैं एक माहिया से, होली पर है, उसके बाद मैं अपनी गजल बनाऊँ। जो घबरा रहा है सभी की ये कहानी है समझ जा, सभी की ये कहानी है समझ जा, और कभी वालिद से न करना बगावत, बच्चों के लिए भी है, कभी वालिद से न करना बगावत, खुदा की मेहरबानी है समझ जा। बहुत बहुत शुक्रिया। होली मिलन समारोह के शुभ अवसर पर हमारे मंचासीन मुख्य अतिथि, सम्मानित अतिथि और सम्मानित देवियों सज्जनों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज ही हम लोग एक छोटा सा होली मिलन समारोह का आयोजन किए हैं। थोड़ा मौसम प्रतिकूल होने के कारण संख्या हो सकता है कि थोड़ा देर में लोग निकलेंगे। टाइम तो 11 बजे ही था। सभी को अभिवादन करते हुए, होली का सम्मेलन है, समाज में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो बीच बीच में एक दूसरे से मिलना मिलाना, भेंट मुलाकात भी होना चाहिए। खाली हम अपने कामों में ही व्यस्त रहते हैं, उसी में से थोड़ा सा टाइम निकाल करके हमें थोड़ा समाज के अपने जो भाई बहन हैं उनसे मिलने जुलने का एक माने बहाना होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया। हमारी जो हिंदी भाषी महिला सम्मेलन है, बीच बीच में लगभग 10-12 साल से ये संगठन बीच बीच में थोड़ा बहुत सामाजिक कार्य करता आया है। पहले हम लोग होली मिलन समारोह भी करते थे, कवि सम्मेलन अपना हम लोग महिला मंच का बीच बीच में आयोजित करते थे, कभी हिंदी दिवस भी छोटा मोटा कर लेते थे। और जैसे कहीं ठंड का मौसम है तो कंबल वितरण इत्यादि, या फिर बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, तो हम लोग कई जगह जा करके राहत सामग्री भी बांट देते थे। मन इस प्रकार की छोटी मोटी जो सामाजिक गतिविधियां हैं हमारे संस्था द्वारा किया जाता है। अभी क्या है कि हम लोगों के समाज में महिलाओं में जागरूकता की बहुत ही आवश्यकता है, जो धीरे धीरे इसमें कमी आएगी। हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, महिला मंच, युवा मंच, चाहे कोई भी मंच हो, सभी को एक साथ मिलके हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। मैं आज के इस समारोह में सभी उपस्थित भाइयों बहनों देवियों सज्जनों का सादर नमन करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय में आईसीयू के मरीजों के परिवार सदस्यों के रहने के लिए सांसद परिमल शुक्लबैद्य ने अहम कदम उठाया है और उनके रहने के लिए एक रेस्ट हाउस का भी निर्माण किए जाने का घोषणा किया है। बहरहाल क्षेत्र के दौरा हो चुका है, मुआयना हो चुका है। आर्थिक अनुदान के चलते जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य संपन्न होगा। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान इस सदन में शिलचर के सांसद परिमल शुक्लबैद्य ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। बराक घाटी में पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि एक मुद्दा उछलकर सामने आई हुई है जो मानवता के ऊपर है, और ये मुद्दा आपके ऊपर है, क्योंकि पिछले 40 सालों में या 50 सालों में शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय बहुत ही पैसे खर्च किए गए, करोड़ों रुपए अनुदान दिए जा रहे हैं, कैंसर के लिए भी करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन सामान्य एक सुविधा जो आईसीयू में रह रहे मरीज की परिवार के रहने की बात, वे लोग फर्श में रह रहे थे, कभी मिट्टी पे सो रहे थे। जाड़े के दौरान परिवार सदस्यों को पक्का पर चद्दर बिछाकर सोने का माहौल देखने को मिला था। कुछ करने का नहीं था, लाचार था। मरीज के जो परिवार परिजन हैं लाचार थे, उनके पास पैसा है लेकिन सोने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। लेकिन ऐसे माहौल में आपने एक अहम कदम उठाया, ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसका चर्चा पूरे बराक घाटी में चल रहा है और सभी चिकित्सा केंद्रों में इस बात पर बातचीत भी हो रही है कि जो प्राइवेट संस्थान है उस पर भी अब इसी मुद्दे के चलते दबाव चल रहा है कि आईसीयू से जुड़े जो मरीज़ हैं उनके परिवार सदस्यों को सुचारू रूप से बैठने का, सोने का थोड़ी जगह मुहैया किया जा सके। आपकी ये कदम एक ऐतिहासिक कदम है सर, और
सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में यह कदम आपने उठाया है, इसका संवाद प्रचारित होते ही बड़े पैमाने पर लोगों ने समर्थन किया। आपका अनुभव क्या है, क्या कहना चाहेंगे? ये मानवता का ऊपर जो आपने एक कदम उठाया, केवल सांसद के पद पर नहीं, एक राजनेता का नहीं, एक आदमी, एक मानव के रूप में जो आपने इतिहास दाखिल किया है, इस संदर्भ में आपका अनुभव क्या है सर? देखिए, कभी कभी मरीज का जब खबर आता है तो हम लोग को देखने के लिए जाना पड़ता है या मरीज का खबर लेने के लिए। तो उसी टाइम पे मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि घर में आईसीयू में पेशेंट, तो जो आईसीयू में रेफ़र किया जाता है इन लोग को जाना है। और सबसे बड़ा बात है कि आप लोग का जानकारी है कि कोविड-19 का पहले आईसीयू इतना नहीं था हमारा इधर में, मगर ईश्वर का कृपा, मोदी जी का सहयोग से सिलचर मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 का टाइम पे 200 से ज़्यादा हमारा विभिन्न विभाग में जो आईसीयू बना। तो इसलिए आईसीयू का पेशेंट, पहले तो आईसीयू का प्रोविज़न ही ज़्यादा हम लोग दे नहीं पाया था, मगर अभी हो गया। तो खूब नेचुरली डॉक्टर लोग आईसीयू में रेफ़र करता है, और आईसीयू में जब रेफ़र होता है तब इनका साथ जो अटेंडेंट है वो तो जा नहीं सकता है अंदर में, बाहर में ही बैठना पड़ता है। कोई ज़रूरत पड़े तो इन लोग को बुलाना है। तो मैं 2-3 दिन देखा और मेरा अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये संसद पूंजी तो आदमी का है, क्योंकि संसद तो आदमी ही भेजता है। तो इतना आदमी का कष्ट देख के मेरा ऐसा लगा, मैं एक दफ़े प्रिंसिपल का साथ भी बात किया, मगर प्रिंसिपल का भी या अथॉरिटी का भी परमिशन होना चाहिए। एनओसी होने से ही उसका किया जा सकता हूँ। कहाँ करना है इन लोग का ही परमिशन लेना है या इन लोग से ही बातचीत करके होना है। तो इसलिए मैंने एक जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है इनका साथ मेरा, मैं उसी दिन नहीं था, नहीं तो मैं भी जाता। प्रिंसिपल एंड मेडिकल कॉलेज का अथॉरिटी को दे के भेजा, जो कैसा होने से ये मरीज का अच्छा हो। मेरा एक नज़र है ऐसा कि इधर में एक वॉशरूम अच्छा ढंग का हो जाए, साथ ही साथ ये थोड़ा सा एक पार्टीशन वगैरह, डॉर्मेटरी टाइप ही करना है, एक पार्टीशन वगैरह करके जो लेडीज़ के लिए थोड़ा सा अलग सा, जैसे इन लोग का भी कोई असुविधा ना हो। तो ऐसा घर, इतना ज़्यादा पैसा का भी बात नहीं है इसमें, 10-15 लाख का। इसलिए मैंने भेजा था इन लोग जो हमारा साथ MP LADS में जो इंजीनियर रहता है, इन लोग को भेजा। तो पहले कस्ट कितना जाएगा वो बना लो, बना के ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं, बना के जैसे आदमी का ऐसा तकलीफ ना हो, क्योंकि वो आने जाने का टाइम में क्या करे बेचारा लोग, तो ऐसा ही बैठना पड़ता है। तो ये हो जाएगा, जितना जल्दी हो सके हम लोग काम शुरुआत कर दूंगा। खूब तुरंत ही काम करने का इरादा हम लोग का मन में है। तो बस इतना ही बात है कि ये आपने जैसा सोचा, आप जैसा आदमी ने जैसा सोचा ये ज़रूरी था। इसलिए यार सांसद पूंजी तो आदमी का ही है, आदमी का जहाँ ज़रूरत पड़ता है तो उधर में ज़रूर खर्चा करना है। और मैं अपना सांसद पूंजी, या पहले मैं विधायक था, मेरा विधायक पूंजी में एक पैसा गिन कर खर्चा करता हूँ। क्यों खर्चा करता हूँ? क्योंकि ये पैसा भी आदमी का है, आदमी ने वोट देके हम लोग को बनाया। तो जहाँ सबसे ज़रूरत है, क्योंकि आदमी का बहुत चाहत होता है, इसमें भी इतना चाहत में भी जो प्रायोरिटी किसको मिले ऐसा ही सोच के देना है। तो हम लोग का तो आप लोग का भी जानकारी है, 5 करोड़ का हर सांसद का साल भर मिलता है। तो 5 करोड़ रुपया साल भर में जहाँ प्रायोरिटी बेस, जहाँ आदमी का अच्छा हो, ऐसा कोई जगह पे प्रायोरिटी बेस देना है। सिलचर में भी बहुत सारे डिमांड है, तो इसमें भी वो प्रायोरिटी बेस लेने के लिए मैंने ये कदम उठाया। इतना ही बात है। धन्यवाद सर, आपने बराक वार्ता को कीमती वक्त प्रदान किया और इतनी नेक काम में अपने आप को शामिल किया है। आम जनता के आशीर्वाद आप पर बनी रहे, इसी बात के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। कछार जिले के बोड़खोला विधानसभा केंद्र में पिछले दिनों आए बवंडर व तूफान के चलते कई मकान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इलाके के करीब हजारों मकान तेज बारिश, तूफान और ओले बरसने के चलते बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। गरीब जनता इन दिनों सरकार से सहयोगिता का गुहार लगा रहा है।
पिछले कई दिनों से बारिश न होने पर एकाएक तूफान व ओले बरसने के साथ साथ तीव्र बारिश के चलते बोरखला क्षेत्र के ग्रामीण इलाके के लोगों के जनजीवन बहरहाल तेज बारिश व ओले बरसने के चलते कई लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं और तूफान के चलते कई लोगों के घर पूरी तरह तबाह हो चुका है। सरकार के समक्ष गरीब समुदाय के लोगों ने सहयोगिता का गुहार लगाया है। कुछ ऐसा ही माहौल पत्रकारों द्वारा अपनी कैमराग्राफी के दौरान देखने को मिला। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर शहर के पौर निगम के 23 नंबर वार्ड में जमे हुए पानी के चलते परेशानी झेल रहे हैं आवासीय क्षेत्र के लोग। जल्द से जल्द कदम उठाए जाने पर वोट बॉयकॉट किए जाने का दिया गया चेतावनी। लोंगाई चाय बागान क्षेत्र में 207 श्रमिकों के हाथों डिजिटल भूमि पट्टा का किया गया प्रदान। 4 श्रमिकों में देखी गई खुशी की लहर। सिलचर के असम सचिवालय का आनुষ্ঠাनिक तौर पर बराक उपत्यका शाखा का किया गया उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के प्रकल्प के तहत लाभान्वित होंगे बराक घाटी के लोग। बागाबाजार न्यू मार्केट क्षेत्र में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की निधन, घायल दूसरा व्यक्ति की भी हुई मौत। इलाके में छाई हुई है मातम की माहौल। सिलचर चिकित्सा